Hey folks, today I want to talk about 8 things whose value I'm realizing as I'm getting older every day. And this is something which makes my life a bit easier to understand. Things get sorted out and things get settled easily. So today I want to discuss about this without wasting your much time. I'm straight on landing the first thing. That is the value of staying low key. और स्टेइंग लो की से मुझे एक कहावत याद आती है कि इंसान वही सफल है, इंसान वही दूर तक जाता है जो अच्छा समय आने पर उड़ता नहीं और बुरा समय आने पर फिसलता नहीं. सो लिविंग लाइफ ऑफ स्टेइंग लो की इज सिंपली appreciating your life without extravagance. And what I saw in today's culture is that people are continuously in the trend of showing up although they are in debt. So living low key, staying low key is making people free. It makes you free to live without showing much, and it creates an authenticity in your life. It makes you real. Now coming to the second point, that is cultivating your circle. It's a important thing in our life that जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उस तरीके की हम सोच डेवलप कर लेते हैं. एंड यू शुड रियलाइज योर फ्रेंडशिप, यू शुड रियलाइज योर फ्रेंड्स द वे दे थिंक. क्योंकि जो भी परसेप्शन आपके ग्रुप में होता है उस तरीके का परसेप्शन आप जनरेट कर लेते हो फॉर योर सेल्फ टू वॉच द थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट लिविंग विद द पीपल जो लोग डेली जिम जाते हैं, एक महीने अगर आप उनके साथ रहते हो तो एक महीने बाद आपका भी मन करेगा, आप भी जिम जाना शुरू कर दोगे. 2 महीने तक अगर आप उनके साथ जाते हो, यू विल डेवलप हैबिट लाइक देम कि सुबह उठना है, कैसा किस तरीके का खाना खाना है, हेल्थी खाना खाना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है. सो जो आपकी संगति है वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो आपकी जो संगत होनी चाहिए, इफ़ यू आर अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, इफ़ यू वांट टू गो फार इन योर लाइफ, प्लीज़ रियलाइज़ कि किस टाइप की आपकी संगत है, किस टाइप के लोगों के साथ आप रहते हो. मेक श्योर. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, और ये जो तीसरा पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू द सेकेंड वन, दैट अलाउिंग ओनली सर्टेन पीपल इन योर लाइफ. सो यू शुड हैव सम करेज टू नॉट अलाउ एंड मेक श्योर कि वो लोग आपके लाइफ में अलाउ नहीं करें जो कि आपकी लाइफ को लेके, आपको लेके नेगेटिव है. दिस इज द थर्ड थिंग विच आई एम रियलाइजिंग कि इम्पोर्टेंस कितनी है इनकी एज आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी डे. ओके, सो द फोर्थ थिंग इज अवॉइडिंग रिस्क. If you want to be good in sports, you have to take the risk of breaking your joints, fractures, broken bones to win the game. No glory is ever achieved without the courage of having the risk. Let me give you a small example. If you are in love with someone और आपको उन्हें प्रपोज करना है, you are risking something, your heart breaking to win her love or his love, whatever it is. Okay, so avoiding risk is the biggest risk you may take in your life, because you are missing out the fun of your life. You'll miss out the whole things which you could achieve, you could do, and you're gonna regret it. So don't let fear of risk stops you from doing whatever you want. The fifth point is very interesting, and it is EGO. Yeah, you heard it right. Ego. And I want to tell you, ego is very worthless thing in our life. जब भी आदमी के अंदर ईगो होता है ना, people start comparing things. यार उसका बड़ा टीवी तो मेरे यहाँ छोटा टीवी कैसे, मुझे भी बड़ा टीवी खरीदना है.
और वो जो कंपैरिजन कंपटीशन शुरू होता है, सो वो फिर आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है. And these inferiority complexes, superiority complexes makes you very uncomfortable in your life, and you feel very depressed, because if you are able to achieve greater than that person जिसके साथ भी आप compare कर रहे हो, you will feel superior, you will be proud of yourself, and you will never listen to other one, and you will get a failure one day. If you are not able to achieve more than that with whom you are comparing, you will surely get some inferiority complex, depression शुरू हो जाएगा. लाइफ वहीं रुक जाती है जहाँ कंपैरिजन शुरू होता है. सो ईगो इज़ वर्थलेस गाइज, ईगो इज़ वर्थलेस. एंड मेक श्योर जितना भी आपके अंदर ईगो है उसे रिमूव करने की कोशिश करो. चीज़ों को देखना शुरू करो आउट ऑफ योर ईगो, एंड लाइफ विल लुक मोर ब्यूटिफुल. I must say this, life will look more beautiful. So coming to the sixth point is that if you are not happy by yourself, you will be never happier. You will never happier with the people together, because there is nothing such affection which could fill that void in your life. अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप से खुश नहीं हो, सो कितने भी लोग आ जाएं, वो आपको कितना भी हंसा लें, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कितने भी कॉमेडी शोज देख लो, यू विल बी हैप्पियर फॉर अ सेकेंड, यू विल बी हैप्पियर फॉर अ मिनट, यू कुड बी अ हैप्पियर फॉर अ आवर, बट नॉट मोर देन दैट. अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करें, एंड वी स्टार्ट लविंग आवर सेल्फ. So the seventh thing is that nothing can replace human connections. Let me make you understand that if you want to grow in any sector, वो चाहे family growth हो, चाहे personal growth हो, चाहे public growth हो, चाहे corporate growth हो, you need to have human connections, and for that nothing works better than good communication skills. So और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है. सो आई फील आई हैव सीन पीपल इंट्रोवर्ट एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. आई एम नॉट सेइंग यू टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, बट वेर एवर नेसेसरी प्लीज़ मेंटेन गुड कनेक्शंस विद द पीपल, बिकॉज वन और अनदर डे दे गोना हेल्प यू इफ़ यू हैव गुड कनेक्शंस विद देम. और जाते ही क्या यार, लोगों से बात करने आए. इन टूडेज़ वर्ल्ड आई हैव सीन कि लोग इतने बिजी हैं, सो अगर आप उनसे बात भी कर लोगे ना, दैट्स मोर देन इनफ टू बिल्ड कनेक्शंस. ओके, यू गॉट इट. या, सो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट बिल्डिंग गुड कनेक्शंस. एट लास्ट एक सक्सेस मंत्रा, और ये मैं सही में फील करता हूँ कि यार दिस इज़ समथिंग विच आई एम मिसिंग, और ये मेरे को लगता है कि लोग भी मिस करते हैं. आई होप यू कुड रिलेट इट कि यार कंपटीशन जो है, अगर आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, या आपको लगता है कि उस पोस्ट के लिए उस कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और इफ़ यू आर नॉट एबल कि टू फिगर आउट कि यार मेरा कैसे होगा, सो देर इज़ ओनली वन सक्सेस मंत्रा. और इस मंत्र की वजह से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यू कुड विन, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच बिल्ड हैबिट्स इन आवर लाइफ, और जहाँ पे आपकी हैबिट्स बनना शुरू होती हैं, यू कैन मेक फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. So I hope you got all these 8 points which I'm realizing. I hope these things might be happening with you. I want to make this into notice of you so that you could understand their values in your life. Some could be positive, some could be negative for you, but I want you to understand these things and the importance of these things in your life. Thank you for watching.